मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ MP ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਗੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛਲ ਕਪਟ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ MSc ਮੈਥ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਲੱਗ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭਦੌੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, 60 ਤੋਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਇਆ ਆਏ ਹਾਂ।
ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ केजरीवाल साहब ਨੂੰ कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ विचार कर। अभी भगवंत मान जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो पार्टी मिलके चुनाव नहीं लड़ सकती, और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और उसके पहले के 4.5 साल देखे कि किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सरकार कैसे चलाएंगे जब ये एक पार्टी नहीं चल सकती। आज आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह पंजाब का पूरा एजेंडा तैयार कर रही है और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले 5 साल में, वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है। अब मैं शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से, चमकौर साहब से और चमकौर साहब से और भदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे। लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहाँ से वो 2007 से एमएलए हैं, वहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप में से कई लोगों ने वहाँ जा के उनके इलाके में लोगों से बात भी की है। सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं, तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो कांग्रेस भी हार रही है। अगर आपके कोई प्रश्न है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। जो सिद्धू की सीट के बारे में क्या आकलन करते हैं, वो पंजाब की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कल या परसों में बताते हैं, उसके भी सर्वे करा रहे हैं हम लोग। अभी तक क्या अब तक सर्वे में सामने आया? वहाँ भी काफ़ी शॉकिंग नतीजे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। जो सिद्धू की शब्दावली के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत चर्चा में है उनकी शब्दों को लेकर। देखो जी, हम गाली गलौज तो हमें करने नहीं आते, गाली गलौज की राजनीति हम करते नहीं हैं, वो उनको मुबारक। मैं कहता हूँ कि हम लोग स्कूल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल बाहरी है। मैं कहता हूँ हम अस्पताल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल के कपड़े ख़राब हैं। मैं कहता हूँ हम पंजाब में बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, तो वो कहते हैं केजरीवाल काला है। तो उनको कहना तो गालियाँ उनको मुबारक, काम हम। इसमें कॉपी क्या करना है, मेरा परिवार आया था वो करने के लिए, आज प्रियंका जी आ गई। इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी है। सर, एक बयान चल रहा है कि सामने आ रहा है कि 10 साल पुरानी गाड़ियां ये फेक न्यूज़ है, ऐसा ये बिल्कुल गलत बयान है। मुझे खुशी है कि आज आपने ये दिखाया। एक ये गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है अकाली दल के द्वारा, जिस पे कल इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी लिया है। उन्होंने इसको हटाने के लिए ऑर्डर किया है कि 10 साल से पुरानी गाड़ियां पंजाब में बंद की जाएंगी। ऐसा कोई हमने ऐलान नहीं किया, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है।
ये भी चन्नी जी का चमत्कार है। 111 दिन में उन्होंने गजब के चमत्कार किए हैं यहाँ पे, कि उन्होंने खुद ही अपनी जांच करा ली, उन अफसरों से जांच कराई जो उसी इलाके के थे, जो शायद रेता चोरी में मदद करते होंगे, उसी इलाके के ऊपर से नीचे तक जो अफसर थे, उन्हीं को कह दिया भाई तुम अपनी जांच करके बताओ। जब ये सीएम बनेंगे असली जांच ये कराएंगे, तब असली जांच जब ये कराएंगे तो दूध का दूध पानी को पानी। एक मिनट, इनका कैसे संतुष्ट हो जाए? अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज हमें पता चला है ईडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है। मैं ये जानना चाहता हूं, ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? हिसाब से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनसे गिरफ्तार करके उनसे क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंटेरोगेशन होनी चाहिए थी उनकी। अगर उनके भांजे ने उनका नाम ले लिया, कबूल कर लिया है कि ये सारा पैसा उनका है, तो फिर उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा जी, देखो आपका चैनल और मैं यहाँ कई लोगों को जानता हूँ, आप ही लोगों ने चमकौर साहब में जा के जनता से बात की और सारी वहाँ की जनता कह रही है जी चन्नी जी के संरक्षण में यहाँ पे रेता चोरी होती है। उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। तो जांच, निष्पक्ष जांच कैसे होगी? कौन करेगा? ईडी ने एक जांच की, उसमें निकल के आया कैश मिला, नोटों की गड्डियाँ मिली, बेनामी एंट्रीज मिली, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली, वो तो कोई नहीं झुठला सकता ना। और सिद्धू साहब कहते हैं कि ये तो मेरा मॉडल है और पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी और अदर जो पार्टी हैं वो नकली सिद्धू घूम रहे हैं, उन्होंने ये कहा। पहला तो ये सवाल। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि ईडी को क्लीन चिट कैसे दे देगा या ईडी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब की कांग्रेस में भूचाल आने वाला है, बहुत से चेहरे हैं जो थोड़ी देर में जो बेनकाब होने वाले हैं। दोनों मैं बताऊँ, देखो सिद्धू साहब कहते हैं मेरा मॉडल, उस मॉडल ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਸੂਤਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ? ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ देखो सीएम साहब आए, इन्होंने महिलावां वास्ते 1000 रुपये का अनाउंस किया 18 साल तो उपर हर एक महिला। एक मिनट लैट मी फिनिश। सिद्धू साहब कहते मेरे नाल डिबेट करो, ये तुसीं किवें दे दोगे? 4 दिन बाद आप ही कह रहे सी मैं 2000 रुपये दूँगा, नाल 8 सिलेंडर दूँगा, 5वीं पास नूं 10,000, 8वीं पास नूं 15,000, 10वीं पास नूं 20,000, नाल स्कूटियां, नाल लैपटॉप। मतलब लोगों ने ਇਹਦਾ मजाक उड़ाया इस गल का कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਔਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। नहीं हुण तुम सवाल भी थोड़ा है, जवाब भी थोड़ा ही है। देखो जी उन्होंने मुबारक शब्दावली उन्होंने जो भी बोलते हैं तो पत्रकारों भी तू करके बोलते हैं, तो ये उन्होंने मुबारक है। तो ठीक है, वो जनरेशन वास्ते लड़ रहे हैं, असी जी करंट जनरेशन है उन्होंने बचाने वास्ते लड़ रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन,
मुझे नहीं लगता बीजेपी की 5 से ज़्यादा सीट आएंगी। 5 भी ओवर एस्टिमेट है मेरी नज़र में। थैंक यू।